ठीक है, the pencil parable story. And once again, first slide says that there are 5 things which the pencil maker says to the pencil. He's going to tell him 5 things by which the pencil can become the best pencil in the world. So what is the first thing? Okay, first, yes, continue. Read. Yes, first you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand. So you can do many great things in your life, like you can draw and you can write and many things, but you can do great things when you allow when you allow yourself to be held in someone else's hand. ठीक है. Second, someone else can read. पढ़िए. Can I read? हाँ, पढ़िए. You will experience a painful sharpening from time to time, but this is required if you are to become a better pencil. Okay, तो आपको बार-बार आपके साथ शार्पनिंग होगी, मतलब आपको तकलीफ होगी, पेनफुल है, but that is required if you want to become a better pencil. Correct? Because without sharpening, the pencil has no value. If you don't sharpen the pencil, so how can you write? And sharpening is very painful. It has to go into the sharpener and it has to undergo that painful process of getting sharpened. Third, next, who is reading? Hare Krishna, can I Sir. Everyone can read one slide. Yeah. You have the ability to correct any mistake you might make. Correct. तो पेंसिल मेकर इज सेइंग कि आपको अगर कोई गलतियां भी आप करते हो तो भी आपके पास एबिलिटी है उसको करेक्ट करने की, क्योंकि आपके पास रबर है, इरेजर है, जिससे आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो. थर्ड हो गया. ओके. फोर्थ. The most important part of you will always be what's inside. तो क्या कहते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जो आप अंदर हो, क्योंकि अंदर में जो लीड है वो लिखने वाली है, वो अंदर होती है ना. बाहर तो केवल लकड़ी का कवर है, पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पेंसिल में वो क्या है? वो अंदर है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट्स इनसाइड. फिफ्थ. No matter what the condition, you must continue to write. You must always leave a clear, legible mark, no matter how difficult. Thank you. So what he is saying, pencil maker is saying, जो भी स्थिति है, you should continue writing. You should not stop, and you should always leave a clear, legible mark, no matter how difficult the situation is. तो आपका जो मार्किंग है वो क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, और मुश्किलों में भी you should continue writing. Next. The pencil understood promising to remember and went into the box fully understanding its maker's purpose. So the pencil also promised, Didi, I'll remember all these things, and went into the box. Now, before moving ahead, now we saw what the pencil maker told to the pencil. Now, can we remember those lessons in our life too? Or can we try to recollect those lessons? क्या lessons थे? पहला lesson क्या था? Surprise question. नहीं याद आ रहा. सेकंड लेसन क्या था? हरे कृष्णा प्रभुजी. Prabhuji, first lesson was that ki pencil can do great things if it is held in someone's hand. Very good. So pencil can do great things if it is held in someone else's hand. Correct. Thank you. That was the first. Second lesson. Sometimes you have to feel sharpening. You have to undergo painful sharpening. आपको एक टाइम टू टाइम आपको एक पेनफुल शार्पनिंग झेलनी पड़ेगी. सेकंड. थर्ड.
You have the ability to correct your mistakes. Correct. You have the ability to correct your mistakes. You have a other. Fourth, Inside is more important than outside. what's most important part in you is what's inside. That's the lead. And fifth, पांचवा, No matter what the condition is, you must continue to write. you have to always leave a clear, legible mark, and you should continue writing. Very good. Good. All of you recollected 5 lessons nicely. So now you see how can we apply these 5 lessons in our life. Don't you think it is very practical? You can replace pencil with yourself and try to see that how these lessons can be implemented so that you can become the best person you can be. हम सबको best person बनना है ना, at least best devotee तो बनना है. So how can we become the best person or a best devotee? By trying to remember these 5 things in our life. तो पहला क्या था? You will be able to do great things only if you allow yourself to be held in someone else's hand. So how to apply in our situation? We can do great things if we allow ourselves to be held in God's hands. That means if we allow ourselves to be dictated by Krishna's instructions, whatever Krishna wants us to do, and if we allow ourselves to do that, अगर हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा malleable बनाए, थोड़ा you can say थोड़ा flexible बनाए कि भगवान को जैसे करना है वैसे हम करने का प्रयास करें. इसका मतलब क्या है? सिचुएशन को भगवान के और शास्त्रों के एंगल से देखने का प्रयास करें, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हम खुद कंट्रोल में नहीं हो सकते हैं, कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है. सो यू हैव टू अलाउ आवरसेल्फ. कई बार हम अलाउ नहीं करते हैं, हालांकि है सब कुछ भगवान के हाथ में, बट हम स्ट्रगल करते हैं भगवान के हाथ से. मतलब वी डोंट वांट टू गिव कंट्रोल इन गॉड्स हैंड, वी वांट टू कीप द कंट्रोल इन आवर ओन हैंड. तो इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं, हम सिचुएशन को बदलने का प्रयास करते हैं और भगवान की क्या इच्छा है उसके हिसाब से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से हम कार्य करने का प्रयास करते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी सफर, दैट्स वेयर वी फेस प्रॉब्लम आल्सो. दैट्स व्हाई इट इज सेड अलाउ योरसेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड. नाउ हाउ टू एक्सपीरियंस गॉड्स हैंड इन आवर लाइफ? यू कैन एक्सपीरियंस गॉड्स हैंड बाय द मीडियम ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव्स. जो उनके प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि कौन है? आचार्य हैं हमारे. षड गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, षड गोस्वामी है. उसके बाद डाउन द लाइन परंपरा में श्री प्रभुपाद जी हैं. प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य हैं, उनके शिष्यों के शिष्य हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं. तो जो भी हमें जो उनके प्रतिनिधि हैं हमारी लाइफ में, जो हमको गाइड कर रहे हैं प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में, हमें अपने आप को उनको समर्पित करना है. और वो जैसे हमको गाइड करें, वो जैसे हमसे सेवा लेना चाहें, we should try to do like that. That means to be allowing ourselves to be held in others' hands. See, all of us have lot of talents, lot of abilities, and lot of potential, but we don't know how to channelize that potential in God's service. कई बार हमें नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए तो बेस्ट सेवा हो पाएगी. और क्योंकि हम अभी कंडीशन सोल हैं, हम बद्ध जीवात्मा हैं, तो हम अपने स्वार्थ के बारे में, अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं. पर जो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो हमें गाइड करेंगे कि कैसे आपकी जो टैलेंट्स हैं, एबिलिटीज हैं, वो भगवान की सेवा में लगाई जाए. तो भले ही हमारा स्वार्थ मिले ना मिले, पर भगवान की सेवा हो सकती है. इसीलिए उनके हाथों में जो हम बेसिकली we should always take guidance, we should always consult before doing anything, before taking any important decision in life. We should always consult our superiors, our shiksha gurus, so that they can guide us in the right way. And instructions we should take from scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad. वहां से हमको इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, वो हम शास्त्र पढ़ के समझ सकते हैं. लेक्चर्स जब हम सुनते हैं उससे समझ सकते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं. So that's the first thing, to allow ourselves to be held in others' hand. Okay, second thing, experience a painful sharpening from time to time. इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में भी टाइम टू टाइम शार्पनिंग होगी. मतलब टाइम टू टाइम समस्याएं आएंगी, और उस समस्याओं से, ऑफ कोर्स समस्याओं से निकलने के लिए एसोसिएशन है, सुपीरियर्स का गाइडेंस भी है,
और वो हमेशा हमारे साथ हैं, बट वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट पेनफुल शार्पनिंग। जब तक वो शार्पनिंग से हम जाएंगे नहीं तब तक हम अच्छे डिवोटी नहीं बन पाएंगे। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, कहावत है ना, बेड ऑफ रोजेस। तो जीवन में ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो रहा है और शांति शांति है और कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, सब हमारी इच्छा के हिसाब से हो रहा है। ऐसे नहीं होगा, बिकॉज टाइम टू टाइम माया विल टेस्ट अस एंड कृष्णा विल आल्सो टेस्ट अस। माया क्या टेस्ट करती है? आर यू सीरियस अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस? सो माया विल ऑलवेज पुट ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ। मान लीजिए अभी हम चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम आएंगी। लोग बोलेंगे अरे हमारे हमारे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव बोलेंगे अभी से क्या आप क्यों रहे हो, अभी इतना क्या करने की आवश्यकता है। या फिर कभी टेस्टिंग सिचुएशन आ जाएगी कि जिस सिचुएशन में हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कृष्ण चाहिए कि माया चाहिए। तो लाइक दैट सिचुएशन विल ऑलवेज कम, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट सच अ सिचुएशन। या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे कुछ दुर्घटना हो गई या फिर कुछ जीवन में दुख आ गया, तो ये सारी सिचुएशन जो है ये भगवान की कृपा है। क्या कृपा है? ऐसे सिचुएशन में भगवान को अगर याद करेंगे तो कृपा है। तो कृष्णा इज गिविंग अस अ चांस टू रिमेंबर हिम, बिकॉज इफ यू डोंट रिमेंबर कृष्णा, even if the situation is very good, but if Krishna's remembrance is not there, then it is not very good ideally. तो जिस सिचुएशन में भगवान का स्मरण हो वो ज्यादा सही है। तो कृष्णा is giving us experience by giving problems that this place, material world, is not a fit place to live. Actually you belong to the spiritual world and you should come back to me. तो बार बार जीवन में समस्याएं आती है, इससे हमको ये समझना चाहिए कि ये मटेरियल वर्ल्ड समस्याओं से भरा ही हुआ है और यहाँ पे समस्या आने ही वाली है। तो अगर हमको समस्या नहीं चाहिए तो भगवत धाम जाना चाहिए। तो भक्ति अच्छे से करें ताकि हम एट द एंड ऑफ दिस लाइफ वी शुड बी एबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। दैट शुड बी आवर गोल ऑफ लाइफ। So how can we take the problems as God's mercy? Only when you follow the instructions of God in your life. ऐसे मतलब बिना प्रैक्टिस किए सिचुएशंस को भगवान की कृपा के रूप में देखना संभव नहीं है। जब तक आप कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो तब तक नहीं कर सकते। नहीं तो लोग जब जीवन में समस्याएं आती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी तरह हताश हो जाते हैं, इमोशनली पूरे ब्रेकडाउन हो जाते हैं और लोग भगवान को ही नाम रखते हैं या फिर एक दूसरे को नाम रखना शुरू कर देते हैं। उसको भगवान के एंगल से, शास्त्रों के एंगल से देख नहीं पाते। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में तो ही सिचुएशंस को हम फेवरेबल तरीके से देख सकते हैं। भले ही एक्सटर्नली वो फेवरेबल हो ना हो, स्पिरिचुअली हमेशा फेवरेबल रहेंगी अगर हम भगवान को याद करेंगे तो। ठीक है, दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, वी आर ऑलवेज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द मिस्टेक वी हैव मेड। तो सी, ऐसा कभी नहीं है कि हमारी लाइफ में हमने मिस्टेक कर दी है और वो मिस्टेक परमानेंट हो गई है। ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा हमारे पास एक सेकंड चांस है, हमेशा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को करेक्ट करने की। राइट, दैट्स व्हाई प्रभुपाद रोट द बुक सेकंड चांस। आपने देखी वो बुक सेकंड चांस? किसके बारे में है वो बुक, पता है आपको? अजामिल स्टोरी। हाँ, यस, अजामिल स्टोरी। तो अजामिल ने भी बहुत गलतियां करी थी और वो बहुत पापी था, पर उसको भी सेकंड चांस मिला। मतलब इतना गलती करने के बाद भी he was almost destined to go to hell and suffer for many many lifetimes. बहुत सारे जीवन तक वहां पर दुख भोगने वाला था, पर उसको भी सेकंड चांस मिल गया क्योंकि उसने गलती से उसने भगवान का नाम ले लिया। तो जो भी हो हमारी लाइफ में हमेशा वी ऑलवेज हैव अ यू टर्न, ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ यू टर्न, ऑप्शन ऑफ करेक्टिंग आवरसेल्फ। ऐसा नहीं कि वंस यू कमिट अ मिस्टेक यू आर डूम्ड, आपको पकड़ लिया गया है और आप हमेशा हमेशा के लिए आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है कि आप गलत हो। ऐसा नहीं होता। कृष्णा इज सो मर्सीफुल, कृष्णा इज सो कंसिडरेट कि कृष्णा ऑलवेज गिव्स यू सेकंड चांस, भले आप कुछ भी हो, कोई भी हो। तो दैट्स व्हाई अगर हमने कुछ गलतियां करी है, नो प्रॉब्लम, सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द डिवोटीज एंड देन कम बैक। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कि भले ही अगर कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ा हुआ है और कुछ गलती करता है, छोटी या बड़ी गलती भी अगर करता है, फिर भी
भगवान कहते हैं स्टिल ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिनर इफ ही इज सिंसियरली रिपेंटिंग फॉर हिज मिस्टेक। अगर वो अपनी गलती के बारे में शोक करता है, पश्चाताप करता है और अपनी गलती को सुधारने के लिए इच्छा रखता है, तो उसको सिनर नहीं दिखना चाहिए। उसको कैसे दिखना चाहिए? साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते हैं उसको साधु के रूप में देखना चाहिए। तो आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो भगवान बोलते नो प्रॉब्लम। वो क्योंकि भक्ति में जुड़ा था, किसी कारण उसने गलती कर दी, नो प्रॉब्लम, बट अभी वो वापस आने के लिए तैयार है ना, तो भगवान उसको भी वापस ले लेते हैं। सम्यक व्यवस्थितो हि सः। और वो साधु क्यों बोल रहे हैं उसको भगवान? क्योंकि जैसे ही वो भक्ति करेगा, भक्ति करने से तुरंत वो शुद्धिकरण हो जाएगा, he'll become purified and immediately he'll be reinstated in his original position। जो उसकी स्थिति थी एज ए डिवोटी, उसमें वापस आ जाएगा। तो भक्ति की शक्ति इतनी ज्यादा है कि हम कितने पाप करें, अगर गलती से पाप कर रहे हैं तो, जानबूझ के पाप की बात नहीं कर रहे हैं, गलती से अगर पाप हो रहे हैं तो गलती से अगर कुछ पाप भी हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप भी हो जाते हैं, तो भी भगवान उसको माफ करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं। तो माता पिता कभी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करते, तो भगवान कैसे रिजेक्ट करेंगे? That's why we always have opportunity to correct our mistake and come back to God। तो हमने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है हमारी? हम भगवान को भूल गए, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो fortunately in this lifetime we have understood about our position कि हम भगवान को भूल चुके थे, और अभी भक्तों के संग में आके हमको समझ में आ रहा है कि भगवान को वापस स्मरण करना चाहिए और भगवान के वापस धाम जाना चाहिए। तो ये हमारी असली ड्यूटी है। वो हमारे पिता हैं, हम उनके अंश हैं, तो हम उनके अंश होने के नाते उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। अनेकों जीवन, हजारों लाखों जीवन हमने दे दिया उनसे दूर होकर, उनको भूलकर, बट अभी जब हम अपने आप को करेक्ट कर पा रहे हैं, तो we should again come back and try to love and serve him, again come to our constitutional position as part and parcel of Krishna। तो क्या हम अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हैं? Yes or no? All of us are ready? Okay, yes, ठीक है, तो all of us should be ready। And if all of you are ready, then no doubt about this, that Krishna is immediately accepting us। Krishna is accepting you right now, as soon as you say ready, provided you don't commit the mistake again। ठीक है, थर्ड, the fourth one क्या था? The most important part you is what's inside। मतलब क्या है? See, your heart is full of love because naturally हम भगवान से प्रेम करना हमारा ये स्वभाव है। By nature we want to love God and we want to serve God। अभी क्या हो गया? मटीरियल वर्ल्ड में आने की वजह से हमें मटीरियल कवरिंग्स चढ़ गई है ना, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, हमने स्टडी किया था। तो because of these coverings we have forgotten our original nature of loving and serving God। That's why here in this fourth lesson he's saying that most important is what is inside। Inside what is there? Our heart is there, which is full of love। So we should try to love and serve God and the living entities in relationship with God। So we should see there are two kinds of qualities। First, one quality is called as innate quality। innate quality मतलब जो आत्मा की प्रॉपर्टीज हैं। आत्मा की क्वालिटीज क्या है? ऑलवेज लविंग, ऑलवेज केयरिंग, ऑलवेज बीइंग हम्बल, नम्र रहना, ऑलवेज बीइंग टॉलरेंट, सहनशीलता, ऑलवेज बीइंग पेशेंट, धैर्य रखना, नेवर गेटिंग एंग्री, ऑलवेज स्पीकिंग स्वीटली। तो ये सारी जो इनेट क्वालिटीज है आत्मा की है। और एक्वायर्ड क्वालिटीज, सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वालिटीज एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड क्वालिटीज मतलब जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ले लेते हैं। तो एक्वायर्ड क्वालिटीज में क्या क्या है? देयर इज ग्रीड, देयर इज प्राइड, देयर इज लस्ट, देयर इज ईगो, देयर इज एनवी, देयर इज इल्यूजन, देयर इज हेट्रेड, देयर इज सो मेनी नेगेटिव क्वालिटीज अदर। ये सब एक्वायर्ड है, ये हमारी क्वालिटीज नहीं है। ये सब हमने यहाँ पर आकर मटेरियल में आके ले लिया। तो जस्ट लाइक a rainwater drop
जब बारिश होती है तो जो पानी की बूंद होती है जो आसमान से गिरती है, इट्स वेरी प्योर। कभी आपने अगर ट्राई किया है बारिश में बारिश का जो डायरेक्ट जल है वो पीने का, तो यू सी इट्स ऑलवेज वेरी प्योर, राइट? बट एज soon as the water drops on the ground, it mixes with the mud and it becomes impure, कीचड़ बन जाता है। तो वही पानी जो आसमान से आ रहा था वो शुद्ध है, पर जमीन के संपर्क में आके वो कीचड़ बन जाता है। उसी तरह आत्मा शुद्ध है, आत्मा एकदम शुद्ध है, पर आत्मा जो है इस मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आके दूषित हो जाती है और बहुत सारे गलत क्वालिटीज एक्वायर कर लेती है जो हमने डिस्कस किया। So that's why we need to focus on what's real qualities. So what's inside is the real qualities. So no matter what you do, you will never be satisfied by anything you do in the material world. आपको मटेरियल वर्ल्ड में चाहे जितना मिल जाए, जो मिल जाए, संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो इनेट है अंदर है वो भगवान से प्रेम करना है। जब तक भगवान नहीं है तब तक शांति नहीं है, तब तक सुख नहीं है, चैन नहीं है। और जैसे ही भगवान आ जाता है तो भगवान के संपर्क में सब कुछ मिल जाएगा। भले मटीरियली आपके पास है नहीं है वो मैटर नहीं करता है। The beauty of Krishna consciousness is what? Even if you don't have anything material, you will be satisfied if you have Krishna with you. And on the contrary, if you don't have Krishna with you, कितना भी है आपके पास, you have money, you have post, position, you have facilities, you have ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, नॉलेज, सब कुछ है, पर कृष्ण नहीं है तो कोई भी चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, भटकते रहता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमको? वी हैव टू क्लींस आवर हार्ट बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। जितना हम भगवान के नाम का जप करेंगे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा। और भगवान का जो प्रेम है वो नेचुरली है ना अंदर, वो कहीं गया नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है वो ओरिजिनली है, तो वही प्रेम हम वापस जागृत कर पाएंगे। तो now Kirti Mother is asking, how will the acquired qualities go? Because they are from many births. Yeah, they are from many births. But again, as we discussed in the last slide also, the power of bhakti, bhakti is so strong that if you practice bhakti under the guidance of a guru and what is recommended in the scriptures, शास्त्रों में जैसे दिया गया है वैसे अगर हम भक्ति करेंगे तो जितने भी हमारे जन्मों के अनर्थ हैं, जितने भी हैं लाखों करोड़ों जन्मों के, वो सब धुल जाएंगे एक दिन, एक जीवन में धुल जाएंगे। So chanting of the holy name is a very powerful process. Maybe sometimes we'll discuss, शास्त्रों में इतने सारे रेफरेंसेस हैं कि भगवान के नाम का जप करना कितना शुद्धिकरण वाला है। यहाँ तक कैसे बताते हैं, अवश्येनापि अन्नाम्नि पातकम पातकी नरः। I am forgetting the whole shloka. It says that भगवान का हरिनाम इतना शुद्ध है कि जीवात्मा इतने पाप कर भी नहीं सकता है जितने पाप हरिनाम के शुद्ध नाम से धुल जाते हैं। तो हरिनाम का एक शुद्ध नाम अगर हम जप करते हैं इतने पाप धुल जाएंगे जितना आप कभी कर भी नहीं सकते हो। So that's the beauty of holy name. So holy name is really very sweet. Our आचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं हरिनाम इतना मीठा है, इतना मधुर है कि हरिनाम को जप करने के लिए एक जीभ और 2 कान सफिशिएंट नहीं है। I want millions and millions of ears to hear and I want hundreds and thousands of tongues to chant. ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं कि उनको हजारों जीवा चाहिए और लाखों कान चाहिए। हमारे केस में उल्टा है, हमारे केस में एक जीवा और 2 कान सफिशिएंट है। वो भी ज्यादा लगता है हमको कभी कभी कि भगवान प्रभुपाद ने 16 माला बोल दिया, पता नहीं 16 माला क्यों करना है। That becomes difficult for us sometimes, 16 round also. But anyway, that is because of our jaundice stage. ये क्यों होता है? क्योंकि हम सबको स्पिरिचुअल जॉन्डिस है। आप में से किसी को जॉन्डिस हुआ है कभी? पीलिया? ओके, कीर्ति माता जी को हुआ है। तो अगर किसी को पीलिया होता है तो पीलिया में क्या होता है? What the symptom? What the disease? बताइए, आपको हुआ है ना? क्या हुआ था पीलिया में? लीवर प्रॉब्लम होती है, लाइक वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, सीरियस लीवर इन्फेक्शन।
ना, दैट्स ट्रू। आई एम आस्किंग जॉन्डिस में होता क्या, मतलब क्या आपको क्या प्रॉब्लम होती है फिजिकली? हाँ लाइक फिजिकली तो लाइक पूरी बॉडी येलोइश हो जाती है, आईज हाँ नेल्स हाँ येलोइश हो जाते हैं, एंड लाइक कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, वॉमिटिंग फील होता है हर हाँ, बार। करेक्ट। एंड एनीथिंग यू टेस्ट, इट टेस्ट वेरी बिटर, कड़वा लगता है कुछ भी खाएंगे तो। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, बहुत कड़वा, करेक्ट हाँ, करेक्ट। सो डॉक्टर, ऑफ कोर्स मुझे कभी हुआ नहीं है पर मैंने शास्त्र में पढ़ा है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं जॉन्डिस का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी आप टेस्ट करोगे वो बिटर लगता है। तो इवन इफ यू ईट्स शुगर केन और गुड़, शुगर केन या फिर गुड़, वो भी उसको कड़वा लगता है। बट डॉक्टर्स रिकमेंड दैट शुगर कैंडी इज द मेडिसिन फॉर जॉन्डिस। तो शुगर कैंडी इनिशियली बिटर लगती है उसको, बहुत कड़वी लगती है उसको, पर वो खाते रहेंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली जॉन्डिस उसका ठीक हो जाएगा और शुगर कैंडी का जो टेस्ट है, स्वीट टेस्ट, वो वापस आ जाएगा। तो प्रॉब्लम शुगर कैंडी में है कि प्रॉब्लम उसकी बॉडी में है? बॉडी में। हाँ, प्रॉब्लम बॉडी में है। शुगर कैंडी तो स्वीट था ही, उसको टेस्ट नहीं आ रहा था। सिमिलरली व्हाट हैपेंस, वी आर नॉट एबल टू टेस्ट द होली नेम राइट नाउ बिकॉज वी आर हैविंग जॉन्डिस। हम सबको पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। क्या जॉन्डिस हो गया है? भव रोग। हम सब अपने आप को मटेरियल बॉडी समझते हैं और मटेरियल बॉडी से बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन है हमारी, इसलिए मटेरियल बॉडी से संबंधित चीजों को अपना मानते हैं। हमारा घर दार, हमारे पत्नी बच्चे, हमारा जॉब बैलेंस, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, जो भी है वो सब हम अपना मानते हैं। ये हमारा पीलिया है। तो हरिनाम का जब, ये बहुत मीठा है, इट्स लाइक द शुगर कैंडी, और हरिनाम हमको अभी बहुत कड़वा लगता है। हमारा चैंटिंग करते करते नींद आती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और माला हाथ से छूट जाती है और ऐसा लगता है चैंटिंग के समय की दुनिया रुक गई है, समय आगे बढ़ता ही नहीं है। तो chanting is a very bitter experience for us, but that's like taking the sugar candy, that's like taking the medicine. And eventually when you keep on chanting, so eventually what will happen, purification will happen, and then what will happen, naturally taste for chanting will awaken. फिर बाद में जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो मीठापन है हरिनाम का वो आएगा। तो अभी हमको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बट वी हैव टू हैव फेथ। हमको शास्त्रों में और हमारे आचार्यों में विश्वास होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। और ऐसे हम देख सकते हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, उनके एक्सपीरियंसेस हम देख सकते हैं, उनके रियलाइजेशन हम देख सकते हैं। सो दे आर नॉट रॉन्ग। सो एज यू आर आस्किंग वी डोंट चैंट इफेक्टिवली, देन हाउ विल वी एलिवेट? दैट्स ट्रू। तो वी हैव टू लर्न टू चैंट इफेक्टिवली। हमको हमारा जब सुधारना होगा, we have to chant attentively. जितना भी हम माला जप करते हैं, we have to learn to chant attentively. We have to hear the holy name. Allow the ears to hear the holy name and let the holy name work on our anarthas. हमारे अनर्थों को हटाने के लिए हरिनाम पर्याप्त है, पर अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ही वो काम करेगा। जब तक हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, माइंड हमारा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, जब तक हम अपराध करेंगे, जबकि समय कुछ गलतियां करेंगे, अपराध करेंगे, तब तक फिर हरिनाम का इफेक्ट उतना नहीं हो पाएगा। So we have to allow proper chanting. Anyway, eventually we'll discuss more about chanting. There are some procedures how to chant effectively, how to chant better. So that was the fourth thing, चौथा इंस्ट्रक्शन जो उनको पेंसिल मेकर ने दिया था। और पांचवा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था पेंसिल मेकर ने कि on every surface you should walk and you should leave your mark. So basically in every situation we should continue with our devotional service. कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी challenges आए, we should remember Lord and we should continue with our devotional service. भक्ति को कभी छोड़ना नहीं है। And God will empower us to do miracles. So we never know what Krishna can do from you, because Krishna, he is a master planner, no? Krishna can fit the whole tree in a seed. इतने बड़े पेड़ को अगर वो बीज में फिट कर सकते हैं, या फिर इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को हवा में उड़ा सकते हैं, या फिर भगवान सन के माध्यम से इतना बड़ा जो ग्रह है सन के बराबर, उसको भी भगवान ऐसे रेगुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली कृष्णा कैन डू एनीथिंग, एनी मिरेकुलर थिंग। तो हमारे साथ भी भगवान मिरेकल कर सकते हैं, हमारे द्वारा भी मिरेकल्स कर सकते हैं।
So we should never give up the service to the Lord, no matter what situation it is, how much testing it is. We should always continue our position, trying to serve God by chanting His holy names and by surrendering to His instructions. भगवद गीता पढ़ के, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के, और जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव है, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, जो हमको गाइड कर रहे हैं, जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, उनके इंस्ट्रक्शन लेके, उनसे हेल्प लेके वी शुड ऑलवेज कंटिन्यू. मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, बट दे आर ऑलवेज अ टेस्टिंग ग्राउंड. तो जैसे परीक्षाएं आती हैं, परीक्षा से जब आप परीक्षा पास कर देते हो, एग्जाम पास कर देते हो, आपको अगले क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है. उसी तरह भक्ति की लाइफ में भी परीक्षाएं होंगी, और जब आप वो परीक्षा पास कर दोगे तो क्या होगा? प्रमोशन. यू विल बी शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेवल ऑफ भक्ति. तो वी शुड नॉट फियर एग्जाम्स. जो प्रिपेयर नहीं करते हैं वो डरते हैं एग्जाम आ जाएगी, और हमको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और एग्जाम तो आने ही वाली है, डे इन डे आउट. So that's how these 5 lessons can be applied in our life, so that we can become a very nice devotee and a nice human being. So everyone is like a pencil created by the maker for a unique and special purpose. What is the purpose? To reciprocate loving devotional service. भगवान की भक्ति करना, भगवान के साथ आदान प्रदान करना. तो जितना हम अपने इस पर्पस को याद रखते हैं, और जितना हम उसको समझते हैं, जितना हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हमारा जीवन मीनिंगफुल हो जाएगा. Our life will get a real meaning and real purpose only when we practice Krishna consciousness. What is that purpose? To establish relationship with God. भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको स्थापित करना है. तो रोज हम करते हैं भगवान के नाम का जप कर कर, भगवान को भोग लगा कर, भगवान के बारे में पढ़कर, भगवान के बारे में सुनकर, और भगवान के भक्तों का संग करके हम रोज इस रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं. And that way we can become great devotees. Or of course we don't become great devotees, but we can do great things. So Krishna can empower everybody to do very great things. See, one Srila Prabhupada says, I am an old Indian man. If I can do such things, what all of you young and talented and intelligent people can do. Imagine, right? So Prabhupada had confidence that all of us, if we become Krishna conscious, we can do a lot. Of course, Prabhupada is a pure devotee, we know that. तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, but Prabhupada हमको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगर हम भक्ति से अच्छे से करें तो मिरेकल हो सकता है. हम भी अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, हम भी लोगों को भक्ति से जोड़ सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है. एक श्लोक आता है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरुं दीनतारिणम. He says, by the mercy of Guru, mukham karoti vachalam. Even a dumb person, he can quote eloquent poetry. जो मूक है, जो मूक बधिर है, वो भी अच्छे से पोएट्री बोल सकता है. पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु है, मतलब जिसको पैर नहीं है या फिर जिसके पैर खराब है, वो भी पर्वत की पहाड़ी चढ़ सकता है. पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम. मतलब इतना है, गुरु की कृपा है तो, और भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है तो देयर इज नो लिमिटेशन to what we can do if we are empowered by God. So we should always depend on God, and if He wants to empower, He'll empower. That's up to Him. The greatest thing in this world is to surrender to Lord, who is our ever well-wishing friend. हमको क्या करना चाहिए? भगवान को समर्पण करना चाहिए. इस भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. भगवद गीता लास्ट कंक्लूजन, कृष्णा सेज, सभी धर्मों को त्याग कर, धर्म मतलब सभी जो इजम्स हैं, जो छोटे मोटे धर्म हमने बना लिए, देश धर्म, जाति धर्म, ये धर्म, वो धर्म, इन धर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, सरेंडर इनटू मी अलोन, एंड दैट सरेंडर विल एम्पावर अस टू बिकम प्यूरिफाइड. कृष्णा प्रॉमिसेस, कृष्णा सेज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सभी पापों को हर लूंगा. आपके जो भी पाप के सिंफुल रिएक्शंस है, मैं उसको खत्म कर दूंगा. भगवान कहते हैं, मां शुचः,
don't fear. So only Krishna can give this promise that don't fear, become fearless. Nobody else in this world can say that I will make you fearless. कोई भी नहीं बोल सकता, कृष्णा बोल सकते हैं. तो इसलिए कृष्णा हमको कह रहा है सरेंडर करिए और आप भगवान की भक्ति में हमेशा स्टेबल रहिए. Okay, so that was about this pencil and parable. Now coming again, so we have to memorize these 5 lessons. What are the 5 lessons? First lesson was, पहला lesson क्या था? For a devotee now, एक भक्त के लिए क्या करना चाहिए उसको? Allow yourself to be in God's hand. Follow His instructions given in Holy Scripture. हाँ, तो भगवान के हाथ में अपने आप को दे दें. भगवान के और भगवान के प्रतिनिधि के हाथ में. ये भगवान तो डायरेक्टली आएंगे नहीं, तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, हमारे जो सुपीरियर्स हैं, उनके हाथ में हम अपने आप को समर्पित कर दें. इन द सेंस उनसे हम हमेशा गाइडेंस लें, इंस्ट्रक्शंस लें और उसको फॉलो करने का प्रयास करें. दैट द फर्स्ट थिंग. सेकंड, लाइक प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगे, लेकिन हमें उसको एज अ मर्सी ऑफ लॉर्ड लेना है बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड डिवोटीज. हाँ, तो पेनफुल शार्पनिंग हमेशा होगा, प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, बट दैट शार्पनिंग विल हेल्प अस टू बिकम अ बेटर डिवोटी. क्योंकि जब समस्याएं आती है तो डिवोटी और अच्छे से भक्ति करते हैं, राइट? तो इट इज सेड व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग. इंग्लिश में कहावत है कि जब चीजें मुश्किल हो जाती है तो एक डिवोटी उसको बोलता है देखता हूँ मैं कैसे मुश्किल हो सकता है, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, तो लेट मी सी हाउ कैन आई नॉट प्रैक्टिस. तो कभी कोई ऑपोजिशन आता है भक्ति में, बट द डिवोटी इज वेरी सिंसियर टू प्रैक्टिस भक्ति. हाँ, ही सेंसिटिव आल्सो. ऐसा नहीं कि वो सेंसिटिव नहीं है, वो सेंसिटिवली चीजों को हैंडल करता है. जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा लो प्रोफाइल भी रहना पड़ता है. लाइक you don't have to expose yourself immediately till a time. Sometimes we are dependent on others, so when we are dependent, then we have to practice as per what they need. We can always practice, but we don't have to expose our practice too much, otherwise people become unhappy with us. So that way a devotee always is sensitive and very intelligent in trying to solve the problems of life. तो second था. दूसरा, तीसरा, लाइक हम लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं, पर हमारे पास हमेशा चांस है अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का. हाँ, तो मिस्टेक क्या करी हमने? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करी? भगवान को भूल कर सबसे बड़ी मिस्टेक. हाँ, हम भगवान को भूल गए हैं और मटेरियल वर्ल्ड में आ गए. ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी. तो अभी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? What to do to rectify that mistake? Devotional service to Lord. Devotional service, correct. Because we are part and parcel of God. We can never forget God. We can never leave God. So we should always, we should try to come back in that position. कि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान की सेवा करें, भगवान से प्रेम करना सीखें. Third, fourth, Like inside is more important than outside. So what's inside inside? our heart is filled with the love of God. Mhm. But we can awaken it by chanting the holy names. Okay, very good. तो मैंने आपको 2 क्वालिटीज बताई. वो 2 क्वालिटीज कौन सी थी? Two categories of qualities I said. Prabhuji, innate and acquired. हाँ, right. Innate and acquired. तो innate qualities कौन सी हैं? To love others, to be humble, कोई ईगो नहीं होगा, and like इसके opposite acquired qualities, lust, anger, greed, pride, false ego, jealousy, hatred. हाँ, ये सब acquired are always impure qualities, and innate qualities are always pure qualities, qualities of the soul, as Virangana Mati also saying, correct. तो ये 2 qualities हैं. तो what's inside is actually the quality of the soul, because it is always in connection with God. So how to
clean our heart is by chanting the holy names. And then fifth lesson. Like Lord will empower us to do miracles, as we have n number of examples in our scriptures. Like an ordinary person can do some extraordinary by when God empowers such person. So we should always practice devotional service no matter what. Even if there are difficulties, challenges, we should continue his service because miracle can happen and Krishna can do anything, even with and just say, the shloka which I shared, Mukam karoti vachalam pangum langayate girim. So, by mercy of God, by mercy of Guru, one can even achieve impossible. इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ना, impossible is a word in a fool's dictionary. प्रभुपाद जी कहते थे, impossible कुछ भी नहीं है. It's a word in a fool's dictionary. सर कोई सोचता है इम्पॉसिबल है प्रभु जी, इस जीवन में भगवत धाम जाना इम्पॉसिबल है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं फुल है वो, जा सकते हैं. Prabhuji, I just want to ask one question. हाँ. So, in between of the class, you discussed about surrendering, that we should have faith in Lord and we should not fear and we should surrender. But like, what is the definition of surrender? Initially, if we think that we surrender to Lord, but if a certain problems came, so we got like we have fear of that problem. So how one will come to the stage of complete surrender? Okay, good question. So now surrender means what? Surrender is trying to apply the principles of Krishna consciousness in our life and not getting swayed away by our mind and senses. So surrender is not like, it's not ऐसा नहीं कि एक बार surrender कर दिया तो surrender हो गए. Surrender is a step, it's a every step process. I mean to say, at every step you have to surrender. Or to address your question, that sometimes when, what is the point? What is the question? Sometimes प्रभु जी, like sometimes हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम like डर जाते हैं उस प्रॉब्लम को लेके, तो like कहाँ हुआ सरेंडर? like हम बोल रहे हैं कि हमने सरेंडर करा है बट हम प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो स्टेज कब आएगी जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, हम किसी चीज से अफेक्ट नहीं होंगे? तो ठीक है, देखिए सरेंडर करना हो सकता है कि कभी-कभी हम अफेक्ट होंगे, बट that should not affect the practice of devotional service. कभी-कभी सेटबैक्स आते हैं, but that setback should not disturb us. अगर डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, so it's surrender. Sometimes to get affected is being human, because we have emotions, we are also human being, so some things will definitely affect. For example, you are a devotee. Now, if someone starts blaspheming you for no reason, कोई आपको उल्टा सीधा बोलने लगता है, गाली देने लगता है, तो थोड़ा दुख तो होगा ही, हार्ट में थोड़ा सा लगेगा कि अरे क्यों बोल रहे हैं ऐसा. बट अगेन, नाउ दैट ब्लास्फेमी शुड नॉट डिस्टर्ब आवर डिवोशनल सर्विस. ऐसे नहीं कि हमको बार बार वही व्यक्ति याद आ रहा है, नाम के जप में भी, नाम जप करते वक्त भी वही याद आ रहा है और उसके प्रति हमको ईर्ष्या हो रही है. सो दैट इज नॉट गुड. तो गेटिंग अफेक्टेड may be okay, being human, but devotional service getting affected is problem. So even during Kurukshetra war, Arjuna got affected because see, human being आता है तो उसके feelings हैं, उसके emotions हैं, वो natural है. तो Arjuna heard भगवद गीता, अर्जुन ने पूरी भगवद गीता सुनी, उसके बाद युद्ध में उतरे और युद्ध में उनका बेटा मारा गया, अभिमन्यु. All of us know that. तो अभिमन्यु मरने के बाद, do you think Arjuna was like, ठीक है, you are not the body, you are spirit, soul, so not a big deal? Can Arjuna say that? No. Being a father, he was affected. He was father, ना? तो थोड़ा सा इमोशन आ गई, थोड़ा से वो उनको मुश्किल लगा. He cried also. It comes in Mahabharata. Arjuna shed tears, but again he stood back and fought. ऐसे नहीं उन्होंने हथियार टेक दिए कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं. तो इमोशंस हैं, दैट्स ओके,
but that doesn't say कि he was not surrendered. तो हमारी लाइफ में भी of course as of now we need more strong shelter and surrender. अभी जैसे आप कह रहे हैं we get affected by the problems, हमारा प्रैक्टिस भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और कभी कभी डाउट भी आ जाते हैं भक्ति में, भक्तों में, कुछ भक्तों के बारे में डाउट्स आ जाते हैं, भक्ति के बारे में डाउट्स आ जाते हैं. So that shows that we are not fully 100% surrendered, and that's true because we are conditioned soul. अभी हमारी प्रैक्टिस इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि 100% सरेंडर हो जाए, पर 100% तक हमको जाना है. प्रोसेस यही है. तो आप जो कह रहे हैं कि कब होगा, वो कब होगा जब हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे. एंड इट मे टेक सम टाइम. डोंट एक्सपेक्ट दैट थिंग्स विल हैपन इमीडिएटली क्विकली, बिकॉज हमारा रेबेलियन जो नेचर है वो कब से है, कितने लाइफ टाइम से हम रिबेल कर रहे हैं भगवान से, कितने जीवनों का पता नहीं. तो इतने लाइफ टाइम तक हमने माइंड को अलाउ किया सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, इतने लाइफ टाइम से हमने अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई किया, अपने माइंड को करप्टेड रखा, और अभी हम भक्ति में जुड़ रहे हैं, अभी हम नाम जप करना सीख रहे हैं, अभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए. इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली. सो प्रोसेस इज दिस. प्रोसेस जितना हम फॉलो करेंगे वो उतना इफेक्ट लाएगा. इट मे टेक फ्यू इयर्स, इट मे टेक अ लाइफ टाइम, इट मे टेक मेनी लाइफ टाइम्स आल्सो, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. तो जैसे हमको पता चलता है कि अरे मैं तो डिस्टर्ब हो गया सिचुएशन से, इसका मतलब मेरा सरेंडर नहीं है, तो हताश नहीं होना चाहिए. ठीक है, सरेंडर नहीं है ना, तो नेक्स्ट टाइम आई विल शो ग्रेटर सरेंडर. तो वी हैव टू जस्ट डू a 0.1% value addition in our life. Don't try to jump long. तो हमको हर सिचुएशन में हमको बेटर बनना है. Last time I got affected by this much, next time I should get +1. I should go more higher. So that way when you do addition, then eventually you will find कि अरे बड़े बड़े प्रॉब्लम भी मुझे हिला नहीं पा रहे. Like for example, पहले जब एक माला जप करना था तो एक माले में ही हम डिस्टर्ब हो जाते थे. एक माला भी बहुत मुश्किल जाता था, कैसे करेंगे एक माला शुरुआत के दिनों में. बट नाउ यू आर एबल टू चैंट फ्यू राउंड्स. तो 1 राउंड इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. इज इट नॉट सरेंडर? यू आर सरेंडरिंग ना. और अभी आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ राउंड्स यू चैंट, नाउ यू आर एबल टू डू दैट. तो लाइक दैट थिंग्स प्रैक्टिस इंक्रीज हो रहा है हमारा, और धीरे धीरे भगवान का रेसिप्रोकेशन भी आता है लाइफ में. Bhakti is not a dry process. Bhakti is a very juicy, is a process of juice, is a rasa. तो भगवान का रेसिप्रोकेशन भी दिखता है लाइफ में. ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं. आएगा, सिचुएशन आएगा जब हम देखते हैं कि भगवान का हाथ है. कभी कभी हम कुछ नहीं करना चाहते, पर कुछ अच्छी चीज हो जाती है हमसे और हमको ग्लोरिफिकेशन मिल जाता है. तो भगवान का रेसिप्रोकेशन है हमारे साथ. So that way, you continue the process, it will work. Thank you, ठीक है? Prabhuji. Prabhuji, in association with this question, like one more question came in my mind. Like आपने intensity की बात करी कि हम जितना intensity से pray करेंगे, like surrender करेंगे, तो हमें उनका reciprocation मिलेगा. Sir, Prabhuji, like we know कि हमारे जो material problems हैं and like ये जो conditioned soul है, हम यहाँ से like यहाँ पे फंस गए आके, तो हमें ये सब पता है and we know that हरि नाम is the only shelter. Still हम जब chanting करते हैं तो वो intensity क्यों नहीं आती है? हमें पता है कि यही solution है, तब भी हम जब chanting करते हैं तो वो intensity क्यों नहीं आती है? तो वो इंटेंसिटी आएगी नहीं अपने आप, वो लानी पड़ेगी. हमको एंडेवर करना पड़ेगा विलिंगली. तो चैंटिंग के समय इट्स नॉट लाइक वी आर प्रोग्राम ना. तो चैंटिंग के समय अटेंटिव रहना है कि नहीं रहना है, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में. हमारे हाथ में ना. तो चैंटिंग के समय अटेंटिव हम नहीं रहते. ऐसा नहीं कि प्रोसेस सही नहीं है. तो as I said, we have to voluntarily practice intensity. इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है? जब हम प्रैक्टिस को स्ट्रांग करते हैं. तो चैंटिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो चैंटिंग के समय को ध्यान देना है कि माइंड हमारा भागे ना. अब माइंड नहीं भागे उसके लिए क्या करना है? लाउडली जप करना है और जो बोले उसको सुनना है. बार बार जो बोलना है सुनना है और फोकस करना है माइंड को. जैसे माइंड भागता है तुरंत उसको लेके आओ. ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम ये तत् आत्म नियम वशम नयत, भगवद गीता में भगवान कहते हैं. तो ये प्रोसेस हमको विलिंगली एंडेवर करना है उसके लिए. जब तक एंडेवर नहीं करेंगे तब तक अपने आप नहीं होगा. तो as you're saying intensity is not there, that means we are lacking somewhere in our practice. We have to bring that intensity. जप attentively करना है, hearing attentively करना है,
नोट्स बना के उसको बाद में पढ़ने चाहिए, बाद में सोचना चाहिए कि हमने क्या सीखा, उसको कैसे अप्लाई किया जाए, कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसको निकालना चाहिए. लाइक दैट वी हैव टू इंक्रीज आवर इंटेंसिटी बाय एंडेवरिंग स्ट्रांगली. तो कृष्णा सीज आवर एंडेवर्स एंड बेस्ड ऑन आवर एंडेवर्स कृष्णा गिव्स मर्सी. कृपा कैसे मिलेगी? जितना हमारा प्रयास होगा. अगर प्रयास है तो कृपा मिलेगी, प्रयास नहीं है तो फिर भगवान कृपा नहीं देंगे. Thank you, Prabhuji. You Thank you. answered wonderfully. Thank you. Hare Krishna. Thank you. So, like that, if you follow this 5 lessons in our life, we'll become a very good devotee and we'll have very healthy relationship with God. Of course, we already have, but we'll establish that relationship again, and we can not only we can experience that Krishna consciousness in our life, but we can also share that Krishna consciousness. See, when can we share? When can we preach? Only when we have something to give. तो अगर हमें कृष्ण कॉन्शियस का एक्सपीरियंस है तो ही हम दूसरों को दे पाएंगे अच्छे से, नहीं तो फिर हमारा प्रीचिंग केवल वो वर्ड्स है, बट उस वर्ड में उतनी पावर नहीं रहेगी, उसमें शक्ति नहीं होगी अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं करके खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. तो इसलिए बोलते हैं ना, वन इज अ गुड प्रैक्टिशनर कैन बी अ गुड प्रीचर. We have to practice nicely and we can preach effectively. Hare Krishna. So I hope all of you are able to chant regularly.